Hey there, YouTube family. Welcome back to our channel. I'm Ashish Vyas, and today we have an exciting video for you. If you are new here, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you won't miss any of our upcoming content. And I'm sure you are new here because this is my first most video on YouTube. So kindly hit the like and share this with your friends as much as possible as encouragement to me, and also let me know your suggestions and feedbacks in the comments so that I can improve over the period of time. So in this video, we are diving head first into investing into small cap, and whether you are a beginner looking for a quick start guide or someone wanting to brush upon their knowledge, you are at the right place, I would say. We have gathered all essential information and tips to get you started. But first, let's talk about why this topic matters. And we all know how to invest, uh, but what's the best way to do it? What is the peaceful way to do it? This is the main objective of this video, and I will try to cover all the aspects as much as possible. Okay, so it's an exciting field that has been captured the interest of people worldwide. आप आजकल किसी को भी देख लो, इन्वेस्टमेंट की बातें करता है, ठीक है, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो, but what is the right way, right best method, and how a beginner can start with. Okay, we are going to explore it together, and today's topic is investing in small cap index funds. So, what is small caps? So, small caps are stocks of those funds basically, which are smaller in size, market capital less than 5,000 crores, जिनका market capital 5,000 crore से कम है. Okay, generally into niche business, and they carry good growth potential and comes with a higher risk as well. Okay, in companies में basically growth potential बहुत अच्छा खासा होता है, and in turn risk भी ज्यादा होता है. So basically it's a high risk high reward game. And when we say risk, obviously let's not forget the volatility. Okay, we can invest in these index funds, and my personal favorite is it's from Nippon, but always prefer direct option instead of regular option because expense fee is lower and subsequently higher NAV. NAV basically कॉमन सेंस है. अगर मान लो अगर आप डायरेक्ट मोड में जाओगे तो आपको बेटर एनएवी मिलेगा कंपेयर टू द वन विच इन द रेगुलर मोड. ओके, सो एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने बनाया है. सो दिस इज बेसिकली द डेटा फॉर लास्ट 10 years ऑफ वन ऑफ अ फंड, जहाँ पे रिटर्न्स आपको डायरेक्ट प्लान में 38.24 lakhs मिलते हैं एंड रेगुलर में 34.71 lakhs. So the impact is huge. Not to deny that, almost like 10 to 12% का impact we can note over the period of 10 years when you go in a regular plan versus direct plan. Okay, and there are a couple of points to note before investing in small cap index. So checking the fund market cap. So prefer कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में जब करते हो तो उसका मिनिमम मार्केट कैप एटलीस्ट एक 200-250 करोड़ हो, ताकि समझ में आए कि हाँ एक एक अच्छा पूल अकाउंट है और फंड मैनेजर भी सेंसिबल होगा. आई एम नॉट सेइंग कि छोटे अकाउंट्स के छोटे मार्केट कैप फंड्स के फंड मैनेजर्स उतने कैपेबल नहीं होते हैं, बट आई बिलीव दिस इज जस्ट माई व्यू कि जितना बड़ा फंड साइज उतना कैपेबल या एक वेल एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर एएमसी असाइन करेगा. Okay, so there are a couple of points which you have to note before investing in small cap index. So as I mentioned, fund market cap is one, and check fund performance against benchmark. Obviously ये index fund है तो इतना कोई फर्क नहीं गिरेगा. आपका जितना भी रिटर्न निफ्टी अपना स्मॉल कैप इंडेक्स देगा उतना ही रिटर्न ये म्यूचुअल फंड भी देगा. ज्यादा से ज्यादा एक लगभग 1.25 या 5% का फर्क इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा. एक्सपेंस रेशियो, एंड दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. एक्सपेंस रेशियो, आप जब फंड्स को कंपेयर करते हो तो इंश्योर कि वो फंड सेलेक्ट करें कि एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो, बट at the cost of expense ratio, don't end up buying something which is very much small in size. Okay, so expense ratio क्या है? This is basically total expense incurred by fund to manage the fund, and it's usually calculated by expense incurred per unit by average NAV.
तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये टोटल खर्चा जो लगता है उस फंड को चलाने के लिए, ओके, इट डिपिक्ट्स दैट। और ये किसके सर पे लगता है? ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है उनके फंड अकाउंट से ही वो पैसा कटेगा। ठीक है, तो प्रिफर करो कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। ओके, बट बिफोर वी डायरेक्टली, नाउ दैट यू नो कि स्मॉल कैप क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो बिफोर यू डायरेक्टली गेट इन टू इन्वेस्टिंग, I would suggest कि you have a look at the data which I have created for last 2.5 years। मैंने 2 ढाई साल का डेटा स्टडी किया है ये समझाने के लिए कि एसआईपी बेटर है या रेगुलर मोड यानी लमसम आप जब खुद से डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हो वो बेटर है। ओके, दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। वी विल डिस्कस इट इन अ वाइल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। सो ये बैकडेटेड डेटा है। ओके, तो इसमें ये पूरा डेटा एमफी से निकाला गया है। सो एमफी का डेटा पूरा फ्री है, एनीवन कैन यूज इट। जस्ट गो टू amphi.com एंड लॉग इन टू, यू कैन डाउनलोड द फंड परफॉर्मेंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 5 साल इन अ गो, आई मे बी रॉन्ग, शायद 5 साल का एक बार में निकलता है, बट यू कैन चेक इट एट एनी टाइम। ओके, सो लेट्स लुक इनटू द डेटा नाउ। ओके दोस्तों, सो दिस इज द बैक टेस्ट डेटा विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली मैंने यहाँ ये किया है कि एमपी की वेबसाइट से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान का सिंस लास्ट एक 2.5 years का डेटा डाउनलोड किया है। आप भी जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू ऑल। सो इसमें मैंने दो कंपैरिजन बनाने का कोशिश किया। सो व्हाट आई बेसिकली डिड इज आई compared SIP mode with the lump sum mode. So if SIP, as you all know, irrespective to market going anywhere, on the particular given day आपका जितना भी डिफाइंड अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, जब SIP मोड से देखते हैं, सो वी हैव क्लॉक समवेयर अराउंड 89% रिटर्न so far, and this is manual mode as per moving average, and this is something a different method, pause on moving average angle. I will explain you about this. सो इन दोनों जगह पे अपन ने मैनुअली डिसीजन लिया है और लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। सो आई विल शो यू कि ये कैसे किया है। एसआईपी तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि एसआईपी कैसे होती है। आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग कि आपको एसआईपी समझ में आता है फॉर नाउ। लेट मी नो इन केस यू वांट a detailed explanation or walkthrough on how to set up an SIP, who is the right broker and who is the best broker, and all. मैं एक separate video बनाता हूँ इसके लिए। Coming back to the point, as per the moving average, pause on moving average angle. Uh, Let me walk you through the setup which I have taken. तो बेसिकली मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे दो मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है। वन इज 50 डे मूविंग एवरेज एंड अनदर वन इज 200 डे मूविंग एवरेज। इट्स सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए डीएमए वो सब नहीं, इट डजेंट मैटर। जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो तो इतना कोई भी मूविंग एवरेज ले लो, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। ओके, नाउ द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर दिस मोड, बेसिकली व्हेन आई से एज पर मूविंग एवरेज, इसमें मैंने ये किया है कि जब भी एक 20 से 25% का करेक्शन आता है, मोर देन 20 to 25% ऑफ करेक्शन, व्हाट आई डिड इज 2x ऑफ द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड। ओके, वंस आई इन्वेस्ट 2x ऑफ अमाउंट, जैसे जैसे ट्रेंड लाइन जा रहा है, एवरी 50 ईएमए के टच होने पे आई एम जस्ट बाइंग इट as per the amount available. Now, how will you decide how much amount of units you should buy? So, for example, मान लीजिए आपकी 5 महीने की SIP लगनी थी, टोटल 25,000 लगना था, और 5 महीने से आपको मौका नहीं मिला और यहाँ पे मौका मिला एंड आपके अकाउंट में 25,000 अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे 25,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए 4 महीना हुआ, 4 महीने का आपका हो गया, 20,000 के पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 20,000। अब यहाँ से यहाँ सिर्फ एक ही महीना है तो आप सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा जो SIP में डिडक्ट होगा आपको एवरी मंथ। आई होप आई एम क्लियर हियर। सो विद दिस मोड, ओके, जैसे जैसे ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेंडिंग था, नो डाउट। फिर अपन यहाँ से, this was the last most investment made in 2021, and since 2021 we didn't invested anything because uh, the market was sideways, and there was a slight retracement happened here. And once again when it crossed moving average 50, I had invested 2x or 3x. Why?
इफ यू सी मार्केट ऑलमोस्ट करेक्टेड 33%। सो यहाँ पे भी ये तो कोविड का क्रैश था, सो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो आप एक थंब रूल बना लीजिए, जब भी मार्केट 20 से 25% करेक्ट हो तो आपका जितना भी कैपेसिटी है उससे 2x आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अगेन इफ यू सी अगेन साइडवेज चले गया, हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया और अगेन वी इन्वेस्टेड हियर। Okay, this was on moving average mode, and pause on moving average angle is something which this is my favorite and peaceful way of investing. I follow this for multiple index, or you can even for stocks. So basically यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका मूविंग एवरेज 20% से ज़्यादा के एंगल पे रहता है, तो आई बिलीव देर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कमिंग इन एंड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर। सो मैंने क्या किया है कि द मोमेंट आई सी द एंगल इज समवेयर अराउंड 20 और मोर, आई स्टार्टेड द एस आई पी हियर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एस आई पी किया। ओके, हमने यहाँ पे एस आई पी नहीं किया और यहाँ पे आके वी हैव पॉज्ड आवर एस आई पी एंड ऑल दैट यू नो देर इज अ ऑप्शन अवेलेबल विद ऑल दोज एएमसीज नाउअडेज। आप अपनी एस आई पी को पॉज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है या मार्केट गिरने वाला है। देर इज अ पॉज ऑप्शन, reach out to your AMCs and you will definitely get to know about that option. So no point in investing your money when the market is sideways. No point in investing in your money when the market is downtrending. So महंगा तेजी तेजी खरीदो और मंदी मंदी काटो, as this is what most of the successful investor follow in the stock market. वो लोग ये करते हैं कि माल जब तेजी में रहता है तभी खरीदते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपए दिए बिजनेस चालू करने के लिए, और आपने उस 10 लाख को 12 लाख कर दिया मान एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, एंड इफ यू गो बैक टू हिम अगेन एंड आस्किंग फॉर मोर फंड्स फॉर एक्सपेंशन और समथिंग, ही वोंट डिनाई। रीजन बीइंग क्योंकि आपका धंधा बड़ा है। और वही मान लीजिए उसी धंधे में अगर आप 10 का 8 कर देते हो और आप दोबारा जब पिताजी के पास जाते हो, तो डू यू थिंक ही विल सपोर्ट? आई डोंट थिंक सो। वही लॉजिक अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट में भी। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि माल जब सस्ता होता है तब खरीदते हैं। नहीं, आप जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंडेक्स है, जब गिर रहा है तो आप उसको सिर्फ वॉच करिए एंड जस्ट वेट फॉर अ हेल्दी कंफर्मेशन। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो इसमें मैंने बेसिकली जैसे जैसे मोमेंटम मिला है बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज, वैसे वैसे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उतना ही जितना मैंने एसआईपी में किया था। ओके, बट अब ओवरऑल रिजल्ट्स एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप 5th ऑफ एवरी मंथ के एसआईपी में देखोगे, सो वी हैव क्लॉक समवेयर अराउंड 89%, मूविंग एवरेज में 118% एंड पॉज ऑन मूविंग एवरेज एंगल में 75%। अब सबसे बेस्ट मेरे लिए, मैं यूजुअली आई फॉलो दिस लॉजिक। द रीजन बीइंग कि मेरे पास टाइम है एंड आई कैरी एक्सपीरियंस। अगर आपको थोड़ा खतरों का खिलाड़ी बनना है तो आई वुड सजेस्ट दिस मोड, जहाँ पे आप सिंपली ये करते हो कि जब भी मार्केट अच्छा खासा करेक्शन देता है, आप 2x 3x खरीद लेते हो, फिर उस ट्रेंड को राइट करते जाते हो। जैसे जैसे 50 मूविंग एवरेज पे रिट्रेसमेंट, छोटा छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिलता रहता है, वैसे वैसे आप लमसम और छोटे छोटे लमसम्स ऐड करते रहते हो। और जैसे ही आपको पॉज दिखता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर देते हो। अगेन जैसे ही आपको 20-25% का करेक्शन दिखता है अच्छा खासा, यहाँ पे 2x करते हो। देन अगेन जैसे ही आपको एक हल्का मोमेंटम, नॉट हल्का, बेसिकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है 30% या 25-30% एंगल दिखता है, अगेन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स अगेन। ओके, अब ये थोड़ा, अगर आप इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई वुड सजेस्ट स्टिल सजेस्ट टू गो विथ एन एसआईपी। बट अगर आप डेली एक 5 से 10 मिनट मार्केट्स को दे सकते हो, तो आई डोंट थिंक देर इज एनी हार्म इन गोइंग विथ अ मूविंग एवरेज पोल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा। So before we wrap up, let's quickly recap what we have learned. आप SIP मोड से करिए या लमसम मोड से करिए, आपको इन्वेस्टेड रहना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग। एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट ट्रिक बताता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। आप SIP और लमसम दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 5,000 पर मंथ SIP करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उसका 40% आप एक अलग छोटे पेटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आई मीन 3,000 की SIP कर दीजिए और 2,000 रुपये आप अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर दीजिए। मैंने ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको साल में 2 साल में एक
ऐसी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे मार्केट अच्छा खासा 5 से 10% का करेक्शन देता है. ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज कैन बी एनीथिंग ड्यू टू लाइक बजट और एनी फॉरेन पॉलिसीज, कहीं पे एनी एनी ग्लोबल इश्यूज, कोई भी वजह से मार्केट टूट सकता है. तो उन अपॉर्चुनिटीज में आपके पास वैल्यू बाइंग के लिए पैसा होना चाहिए. सो अगेन व्हेन आई से, जब मार्केट गिरे तब खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जब मार्केट अच्छा खासा गिर के जरा सा भी मोमेंटम दिखा है, दैट इज द राइट टाइम. यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज अवेलेबल फंड्स विच यू हैव बीन अक्यूमुलेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये एक अच्छी खासी ट्रिक है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ. उसके वजह से क्या होता है कि अगर इवन इफ अ फंड इज परफॉर्मिंग 11 to 12% एट CAGR पर एनम, आप इस मेथड से उसको 16 to 18% तक इजीली ला सकते हो. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई होप यू would also like it. Please give it a try and start small and be disciplined and stay focused. Be in the market. That is way more important than earning money. Over the period of time, आप जब ये सारे rules और जब follow करोगे, you will automatically know, you will never know कि आपका कैसे अच्छा खासा fund accumulate हो चुका है, right? And the power of compounding usually starts at 5 to 7 years. So staying invested is very much important. Okay, so I hope you like my video, and in case अगर आपको ये content अच्छा लगा हो तो please hit the like button and don't forget to subscribe. Please also share this video with your friends, and don't forget to give your valuable feedback in the comment so that I can improve. And in case you have any idea or suggestion which you want to know, let me know. I will try to create a video on the same. Thank you for being here with me, joining with me today. Have a great investing and great career ahead. Thank you. Bye bye.